दिवाली के बाद मौसम में बदलाव आता है, जिससे कई तरह की बीमारियां फैलती हैं। गुजरात के अमरेली में डेंगू के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। अमरेली की शांतिबाई जनरल हॉस्पिटल में डेंगू के मरीज बढ़ गए हैं, जिससे स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया है। अमरेली के सिविल अस्पताल में डेंगू के मरीज लगातार अपना इलाज कराने के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं सर्दी, जुकाम, बुखार जैसी कई बीमारियां भी फन उठा रही हैं, जिससे स्वास्थ्य विभाग भी सख्ते में आ गया है। અત્યારે દિવાળીની તહેવારોની સિઝનમાં મચ્છરજન્ય રોગ જેવા કે ડેન્ગ્યુ, મલેરિયા અને ચિકનગુનિયાના કેસો સતત વધતા રહે છે અને આ કમોસમી વરસાદ તેમજ ખેતીની સિઝન હોય ત્યારે બધાએ પોતાના ઘરની આસપાસ પાણી ભરાવા ન દેવું તેમજ મચ્છરથી બચવા થતા ઉપાય જેમ કે પૂરતા કપડાં પહેરવા, ઓડોમોસ ક્રીમ લગાવવી કે કોઇલ સળગાવી ઓલ આઉટ કે એ રીતના બધા પ્રયત્નો કરી જેમ બને મચ્છર કરડતા અટકાવવા જરૂરી છે। કારણ કે ડેન્ગ્યુ, મલેરિયા, ચિકનગુનિયા ત્રણેય મચ્છરજન્ય હોય। અત્યારના સિઝનમાં ડેન્ગ્યુના કેસીસમાં બહુ જ ઉછાળો જોવા મળ્યો છે અને ડેન્ગ્યુમાં મુખ્યત્વે એના સિમ્પટમ્સમાં માથું દુખવું, આંખો બળવી, આંખો દુખવી, કમર દુખવી અને તાવ। દવા લેવા છતાંય તાવમાં રાહત ન થાય તેમજ પ્લેટલેટ પણ ઘટે અને જો વધારે ગંભીર પરિસ્થિતિ થાય તો લોહી વહેવાનું ચાલુ થાય, કિડની, લીવરને પણ નુકસાન થાય। તો આ બધું અટકાવવા આપણા હાથમાં હોય। આપણે બધા સાવચેતીના પગલાં લઈ અને બધું ध्यान રાખીએ તેમજ જેમ જેમ જેને સિમ્પટમ્સ દેખાય તે તરત નજીક આસપાસના હોસ્પિટલનો સંપર્ક કરી અને સારવાર લે। ચોમાસા પછી સામાન્ય રીતે માખી, મચ્છર વગેરેનું ઉત્પાદન વધતું હોય છે, એનું બ્લીડિંગ વધતું હોય છે, એના લીધે બીમારીઓ વધતી હોય છે। મચ્છરજન્ય રોગોમાં ખાસ કરીને હાલ વાયરલ ફીવર ને બીજા બધા ઇન્ફેક્શનની સંખ્યા વધારે છે, એટલે ફિઝિશિયનની ઓપીડી અને પીડિયાટ્રિશિયનની ઓપીડી વધારે રહેતી હોય છે, એમાં ઘણો ધસારો રહે છે। જે ખાસ કરીને મચ્છરજન્ય રોગો છે એનું ટેસ્ટિંગ આપણે કરીએ તો ડેન્ગ્યુ માટે પાછલા ઓક્ટોબર માસમાં આપણે 480 જેટલા સસ્પેક્ટેડ સેમ્પલ લીધેલા હતા, એમાંથી 73 જેટલા પોઝિટિવ આવ્યા। એ ઉપરાંત 106 જેટલા બહારના પોઝિટિવ હતા। એમ કરીને બધા મળીને કુલ 179 જેટલા દર્દીઓને આપણે ડેન્ગ્યુના કેસોને સારવાર આપેલી છે। ચાલુ મહિનામાં નવેમ્બર 1 થી 7 તારીખ સુધીમાં ગઈકાલ સુધીમાં આપણે લગભગ ડેન્ગ્યુના સસ્પેક્ટેડ 85 જેટલા સેમ્પલ લીધેલા, એમાં 23 જેટલા પોઝિટિવ આવ્યા છે। એ ઉપરાંત 20 જેટલા બહારના પોઝિટિવ કેસ હતા। એમ બધા મળીને 43 જેટલા કેસને આપણે અત્યાર સુધીમાં આ અઠવાડિયામાં સારવાર આપી છે। બધા સારા થઈને ઘેર ગયેલા છે। આપણે ત્યાં ડેન્ગ્યુની સારવાર માટે ફિઝિશિયન ઉપલબ્ધ છે, પીડિયાટ્રિશિયન પણ ઉપલબ્ધ છે। એના માટે ટેસ્ટિંગ માટે સિરોલોજી ને હેમેટોલોજીની લેબોરેટરી પણ ઉપલબ્ધ છે, જરૂરી દવાઓ પણ છે, કોઈ મૃત્યુ પણ થયેલા નથી। અને ડેન્ગ્યુનું જે આ ખાસ કરીને સિઝન છે એના માટે જિલ્લા આરોગ્ય તંત્ર અને રાજ્યના એપિડેમિક સેલ તરફથી પણ પૂરતું માર્ગદર્શન અને એનું મોનિટરિંગ પણ ચાલુ છે। गुजरात के वडोदरा में बिना लाइसेंस के हथियार के साथ पकड़े गए शख्स पर कानूनी कार्रवाई की गई है। वडोदरा पुलिस को मिली पूर्व सूचना के आधार पर एक बस यात्री को पकड़ा गया था, जिसके स्कूल बैग में पिस्तौल रखी हुई थी। इस शख्स को पकड़कर पूछताछ कर पुलिस ने कानूनी कार्रवाई की है, जिस पर पत्रकार परिषद में जानकारी दी गई। वडोदरा शहर फतेहगंज पुलिस स्टेशन में हमारा पुलिस कर्मचारी ने एक चौक्कस बातमी मळेली कि एक इसम सरकारी इलेक्ट्रिक बस के जे वडोदरा थी अमदावाद जई रही है एनी अंदर ए व्यक्ति गैरकायदेसर देशी बनावटनी पिस्टल लईने बैठेल छे। आ बातमी आधारे पोलीसे पंचो साथे फतेहगंज रोड पर बस ने रोकेली। बसमांथी बातमी मुजबनो ईसम शंकास्पद हालत में मळी आवेलो। एनी झड़ती तपास दरमियान एक देशी हाथ बनावटनी पिस्टल मळी आवी, केम के एनी पासे लाइसेंस न हतुं, कायदा विरुद्धनी देशी बनावटनी पिस्टल मळी आवेली, तेथी आर्म्स एक्ट हेठळनो एना विरुद्धनो गुनो नोंधी અને ફતેહગંજ પોલીસ સ્ટેશને કાર્યવાહી હાથ ધરેલ છે। આ ઈસમનું પૂરું નામ વિશ્વજીતસિંહ અજીતસિંહ પરમાર છે। પોતે આજે સરકારી ઇલેક્ટ્રિક બસો છે એનું ચાર્જિંગ ઓપરેટર તરીકે કૃષ્ણનગર અમદાવાદ ખાતે નોકરી કરે છે અને આ જ કામ અર્થે વડોદરા ખાતે એક બીજો ઈસમ છે દિલીપ રાઠવા કે જે મકરપુરા સ્ટેશનમાં કોન્ટ્રાક્ટ બેઝ ઉપર નોકરી કરે છે અને એના મિત્રતા કેળવાઈથી અને આ
દિલીપ રાઠવા પાસેથી એણે આ પિસ્ટલ મેળવી હોવાનું હકીકત જણાવે છે. આ વિશ્વજીતસિંહ પરમારનો ગુનાહિત રેકોર્ડ અમે તપાસ્યો છે. હાલ પોલીસ રિમાન્ડની તજવીજ હાથ ધરેલ છે. પ્રાથમિક તપાસમાં કૌટુંબિક કારણોસર એણે આ હાથ બનાવટની પિસ્ટલ 35,000માં એના મિત્ર દિલીપ રાઠવા પાસેથી ખરીદ હોવાનું જણાવેલ છે. આની આ કૌટુંબિક શું કારણો છે, આ સિવાય બીજા કોઈ અન્ય હકીકત છે કે કેમ, એ મુદ્દા પરત્વે પોલીસે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે અને રિમાન્ડની તજવીજ પણ હાથ ધરેલ છે. એના ભૂતકાળના કોઈ ગુના છે કે કેમ એ તપાસતા હાલ સુધી કોઈ ગુનો નહીં હોવાનું પ્રાથમિક દ્રષ્ટિએ જણાઈ આવેલ છે. કેમ કે આ આરોપી અમદાવાદ, નરોડા, કૃષ્ણનગરનો રહેવાસી છે અને સરકારી ઇલેક્ટ્રિક બસના કોન્ટ્રાક્ટ પર નોકરી કરે છે. એટલે એસટી વિભાગને તેમજ અમદાવાદ શહેર પોલીસને પણ અમે આ મતલબે જાણ કરી છે. महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अकोला में सभा की. महाराष्ट्र में 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पीएम ने लगातार तीसरी रैली की. इससे पहले उन्होंने 8 नवंबर को नासिक और धुले में रैली की थी. अकोला में पीएम मोदी ने कहा कि एक बार फिर महायुति भाजपा, शिवसेना और एनसीपी के लिए आशीर्वाद मांगने आया हूँ. आज 9 नवंबर है. ये तारीख बहुत ऐतिहासिक है. आज के दिन ही 2019 में देश की सर्वोच्च अदालत ने राम मंदिर पर फैसला दिया था. फैसले के बाद हर धर्म के लोगों ने संवेदनशीलता परिचय दिया. फैसले के बाद हर धर्म के लोगों ने संवेदनशीलता का परिचय दिया. ये राष्ट्र प्रथम की भावना है. भारत माता की, भारत माता की जय भवानी. अकोल्यातील माझ्या सर्व बंधू आणि भगिनींना माझा नमस्कार. अब एक बार फिर मैं विधानसभा चुनाव में महायुति के लिए आपसे आशीर्वाद मांगने आया हूं. और ये 9 नवंबर की तारीख बहुत ही ऐतिहासिक तारीख है. आज के ही दिन 2019 में देश की सर्वोच्च अदालत ने राम मंदिर पर फैसला दिया था. साथियों, कांग्रेस और अघाड़ी वालों ने महाराष्ट्र के लोगों की जिस मांग को दशकों तक पूरा नहीं होने दिया, मोदी ने वो भी पूरा कर दिया. बताऊं क्या बात की है हमने? बताओ. हमें मराठी को अभिजात भाषा का दर्जा देने का सौभाग्य मिला है. मराठी को वो सम्मान मिला है जिससे पूरे महाराष्ट्र का गौरव जुड़ा है. अच्छा, ये काम करना, अभी आप चुनाव में गांव-गांव जाएंगे, घर-घर जाएंगे, लोगों को मिलेंगे और कहीं जाते हुए आपको नजर आए कि कोई परिवार अभी भी झोपड़ी में रह रहा है, कोई परिवार अभी भी कच्चे घर में रह रहा है, तो उसका नाम पता लिख करके मुझे भेज दीजिए और उसको बता दीजिए कि मोदी जी ने मुझे भेजा है, तुझे पक्का घर मिलेगा. ये वादा करके आओगे मेरी तरफ से? देखिए, मेरे लिए आप ही मोदी हैं. तो वादा कर दोगे? आप वादा करके आइए, मैं वादा पूरा कर दूंगा.
पीएम ने कहा कि 2014 से 2024 तक महाराष्ट्र ने भाजपा को दिल खोलकर आशीर्वाद दिया है। मेरे लिए महाराष्ट्र की सेवा का सुख ही अलग है। केंद्र में हमारी सरकार को 5 महीने हुए हैं। इन महीनों में लाखों करोड़ों रुपए की परियोजनाएं शुरू कर दी गई हैं। इनमें से ज्यादातर महाराष्ट्र में हैं। साथियों, 2014 से 2024 ये 10 वर्ष महाराष्ट्र ने बीजेपी को लगातार दिल खोलकर आशीर्वाद दिया है। बीजेपी के ऊपर महाराष्ट्र के इस भरोसे की वजह भी है। इसकी वजह है महाराष्ट्र के लोगों की देशभक्ति। और महाराष्ट्र के लोगों की राजनीतिक समझ और महाराष्ट्र के लोगों की दूरदृष्टि। इसलिए महाराष्ट्र की सेवा का मेरे लिए सुख ही कुछ अलग है। अभी केंद्र में हमारी सरकार को 5 महीने ही हुए हैं। इन 5 महीनों में लाखों करोड़ रुपए की परियोजनाएं शुरू की गई है। इसमें बड़ी संख्या में महाराष्ट्र से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भी हैं। मैंने अभी कुछ ही समय पहले जिस वाढवण पोर्ट की आधारशिला रखी है, अकेले उसकी लागत ही करीब करीब 80,000 करोड़ रुपए है। और महाराष्ट्र में बनने वाला ये पोर्ट हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पोर्ट बनने वाला है। आज हिंदुस्तान के सभी बंदरगाह की कुल ताकत जो है, उससे डबल ताकत अकेले ये महाराष्ट्र में वाढवण में बनने वाले नए बंदरगाह की होने वाली है। गुजरात के भरूच में राम कथा का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। भरूच के आमोद के केरवाड़ा में राम जी मंदिर ट्रस्ट के मंत्री डॉक्टर योगेश कोठारी के मार्गदर्शन में महुआ सौराष्ट्र के भगत बापू की राम कथा का आयोजन किया गया है, जिसमें रोज अलग अलग कथा प्रसंग का वर्णन हो रहा है, जिसका बड़ी संख्या में श्रद्धालु लाभ ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में पशु चरा रही महिला के मासूम बच्ची के साथ नाबालिग के दुष्कर्म की घटना सामने आई है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में महिला अपनी 6 साल की मासूम बच्ची को लेकर पशु चराने गई थी। उस दौरान 2 नाबालिग ने बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। बच्ची की हालत बिगड़ने पर उसे निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। इस मामले में पुलिस कानूनी कार्रवाई कर रही है। ये थाना कोतवाली देहात क्षेत्र में कल दिनांक 7/11/2024 को सायं लगभग 5 बजे एक नाबालिग लड़की अपनी मां के साथ पशु चराने गई थी, जहां पर 3 लड़कों द्वारा उसके साथ यौन उत्पीड़न की घटना कारित की गई थी। इस संबंध में पीड़िता की मां की तहरीर पर तत्काल थाना कोतवाली देहात पर सुसंगत धाराओं में अभियुक्त पंजीकृत कर इसकी विवेचनात्मक कार्रवाई प्रारंभ की गई। घटनास्थल का उच्चाधिकारी गणों द्वारा भी निरीक्षण किया गया। विवेचना से इसमें 3 अभियुक्तों का नाम प्रकाश में आया। जुनैद सनाफ अबरार निवासी कुरैशियान थाना कोतवाली देहात, दूसरा विशाल सनाफ अंजार निवासी रहमतुल्ला कॉलोनी थाना कोतवाली देहात व एक बाल अपचारी को कल ही पुलिस अधीक्षक लेकर आज माननीय जुवेनाइल कोर्ट के समक्ष उसे पेश किया गया।
शेष 2 अन्य भक्तों की भी आज गिरफ्तारी कर ली गई है। शीघ्र ही इन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। गुजरात के भरूच के झगड़िया तालुका के मांडवी गांव में एक खेत में बड़ी संख्या में शंख पाए गए हैं। मांडवी गांव के किसान नारायण भाई वसावा ने बताया कि खेत में जब ट्रैक्टर खेती के लिए जा रहा था, खेत में जब ट्रैक्टर द्वारा खेती की जा रही थी, तब यहाँ शंख मिले, जिससे किसान आश्चर्यचकित रह गया। उस स्थान पर और अधिक खुदाई करने पर बड़ी संख्या में जमीन में दबे शंख मिले, जिसके बाद उसकी पूजा की गई और फूल चढ़ाए गए। यह शंख देखने में कई साल पुराने लग रहे हैं, लेकिन यह शंख कहां से आए और इतनी बड़ी संख्या में शंख का क्या उपयोग है, यह जांच का विषय बन गया है। अँ शंख निकळ्या छे त्यारे मने भक्तजने जाण करी अने आया अमे आया अने शंख जोया तो पूजा विधि विधान से सवन पूजा करीने अने विधि विधान से काढीने आ दर्शन करीए बधा मुकेला छे। एटले बधा आस्थाना माटे आ सेवा माटे बधा मुकाया छे और कोई भी भाविक भक्तजन आवे दर्शन करे, हमारे ये नम्र विनंती है। जूना तो ऐसा है कि आपणे कहीए तो हजारों वर्षो वीती गયેલા છે, પણ પ્રાપ્ત આવડે થયેલા છે એટલે આપણે એનો ગણતરી તો નહીં કરી શકીએ। પણ અમારી જમીન છે આ માંડવીમાં છે એટલે આ ખેતરમાં હું પલા મારતો હતો તો તે રીતના નીકળી આવેલા હતા। શું નીકળ્યું હતું? સંઘ નીકળ્યા હતા। પછી તમે શું કર્યું? સંઘને કાઢીને પછી ઊંઝામાં મૂક્યા। આશરે સંખ્યામાં તો 150 થી 200 હશે। पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। एवरी न्यू ईयर वी टेक अ न्यू ईयर रेजोल्यूशन। न्यू ईयर रेजोल्यूशन का मतलब होता है अपग्रेडिंग योर लाइफ, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे।
देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। उत्तर प्रदेश के गोंडा में आपसी रंजिश के चलते फायरिंग का मामला सामने आया है। गोंडा जिले की नगर कोतवाली क्षेत्र में गांधी पार्क के पास आधी रात पुरानी रंजिश के चलते फायरिंग का मामला दर्ज हुआ है, जिसकी सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और इस मामले पर कार्रवाई शुरू की। आज मेरे मित्र अंश गुप्ता का यहाँ बर्थडे था गोंडा में। हम लोग इनवाइट थे PR रेस्टोरेंट में, तो हम लोग यहाँ आए उनका बर्थडे में। हम लोग बैठे हुए थे। उसके बाद में और एक लोग विशाल सिंह है, वो बहुत पहले हमारे 2 मित्र के ऊपर मुकदमा लिखाए थे। तो वही पुरानी रंजिश लेकर फर्जी में मुकदमा लिखाने के बाद में वो लोग फिर हम लोगों को टार्चर करने के लिए कि ये लोग आए, फिर हमसे बाजे उल्टे मुकदमा लिखाए, फिर इनको जेल में जो इसमें 2 लोग फर्जी में जेल भी गए थे। वो अपनी स्कॉर्पियो लेकर सिर्फ 3 राउंड यहाँ से मारे। 3 राउंड वो लोग मारे। हम लोग को ताड़ रहे थे कि ये लोग खड़े निकले बस मारे। हम लोग अंदर बैठे थे, कुछ बोल नहीं रहे थे। जब फिर हम लोग घर पे बताए, घर वालों ने कहा कि तुम लोग वहाँ से आराम से निकल लो। हम लोग तुरंत जैसे नीचे निकलने लगे घर जाने के लिए। फिर ये अंकित लड़का है, वो खाली 2-4-5 हज़ार रुपए के लिए लूटपाट हत्या अपराध में उसका पैसा है, ये वो करता है। उसका भी 2-4 बार सब मौत के मुंह में गया था जेल में। उसी को ये लोग असलहा दिए और उसी को भिजवाए। फिर ना कुछ सोचे ना समझे सर, हम लोगों के ऊपर तुरंत हमला करवा दिया। 3-4 राउंड हम लोग के ऊपर फायर किया। हम लोगों पर हम लोग किसी तरह भाग के फिर वकील साहब घर में अपने जान बचाए। स्कूटर से 3 लोग थे, एक अंकित नाम है एक का और एक का नाम अर्पित पाड़े है। एक लोगों से नहीं पहचान पाए। कैमरा है, वो जब कल सुबह निकलेगा तो पता चलेगा। मौके पे पुलिस आई, बिहार कोतवाल साहब भी है, दरोगा साहब भी है, सब लोग है, चौकी और कोतवाली दोनों है। कल दिनांक 8 नवंबर 2024 को समय करीब रात्रि 8:30 बजे थाना कोतवाली नगर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी एक प्राइवेट रेस्टोरेंट में राघवेंद्र नामक युवक अपने दोस्तों संग बर्थडे पार्टी मना रहा था। अभी विपक्षीगण अंकित सिंह एवं कुछ लोग एक फायर करके भाग गए हैं। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस एवं उच्च अधिकारीगण मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। CCTV फुटेज भी देखे गए हैं। आवेदक की लिखित दलील के आधार पर 4 नामजद आरोपियों के विरुद्ध थाना कोतवाली नगर पर सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया गया है। आरोपियों की शीघ्र ही गिरफ्तारी की जाएगी। प्रकरण में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के गोंडा में यातायात माह नवंबर के तहत वाहन चालकों को यातायात नियमों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए रैली का आयोजन किया गया। गोंडा में यातायात व्यवस्था को सुरक्षित बनाने की दिशा में एक और कदम उठाते हुए अंबेडकर चौराहे पर नवनिर्मित ट्रैफिक पुलिस बूथ का उद्घाटन किया गया। इसके साथ ही यातायात माह नवंबर 2024 के अंतर्गत यातायात जागरूकता के उद्देश्य से गुरु नानक चौक से रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इसमें NCC कैडेट्स और स्थानीय विद्यालयों फकरुद्दीन इंटर कॉलेज, LBS इंटर कॉलेज और थॉमस इंटर कॉलेज के छात्र छात्रा शामिल हुए। रैली के दौरान यातायात नियमों पर जोर देते हुए गोंडा पुलिस अध्यक्ष विनीत जायसवाल ने लोगों को संदेश भी दिया। देखिए, जैसा कि आप सभी अवगत हैं, जो हमारा ये नवंबर माह है, ये यातायात माह के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें पुलिस विभाग द्वारा, हमारे ट्रैफिक के लोगों द्वारा लगातार विभिन्न जन जागरूकता के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए। इसी क्रम में आज गुरु नानक चौराहे से NCC के हमारे कुछ छात्रों छात्राओं की एक जागरूकता रैली निकाली गई है, जिसमें करीब 250 बच्चों ने प्रतिभाग किया है, जो विभिन्न कॉलेजेस से हैं। ये कुछ दूरी तय कर लगातार यातायात नियमों संबंधी जानकारी लोगों को देंगे और उनसे इनका पालन करने की अपील करेंगे। इसी प्रकार आज अंबेडकर चौराहे पर एक ट्रैफिक पुलिस बूथ का उद्घाटन किया गया है, जिसमें हमारे ट्रैफिक के कर्मी जो लगातार 24 घंटे कई शिफ्टों में यातायात नियमों को संचालित करने में मदद करते हैं, उनको रेस्ट करने का एक वहां पर अवसर मिलेगा और आगे भी ये जागरूकता के कार्यक्रम लगातार चलते रहेंगे। कई बार लोग अजब गजब कारनामे करते हैं। एक ऐसा ही कारनामा गुजरात से सामने आया है, जहां अमरेली में एक परिवार को अपनी कार इतनी प्रिय थी कि उन्होंने कार को बेचने के बजाय उसे समाधि देकर हमेशा के लिए अमर कर दिया। हम अपने जीवन में उपयोग की गई चीजों जैसे गाड़ी, फोन, लैपटॉप और ना जाने क्या क्या एक वक्त के बाद कचरे में फेंक देते हैं, लेकिन गुजरात के अमरेली जिले के एक गांव में ऐसा नजारा देखने को मिला जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। इस गांव में एक परिवार ने अपनी लकी कार को जब उसका टाइम पीरियड खत्म हो गया तो बाकायदा पूरी रीति रिवाज के साथ उसे समाधि दी।
परिवार के लोगों की कार के प्रति भावना इतनी गहरी थी कि उन्होंने उस कार को हमेशा याद रखने के लिए भव्य कार्यक्रम भी आयोजित किया। कार को दफनाने से पहले परिवार वालों ने बकायदा पूजा पाठ किया और उसे फूलों से सजाकर उसके ऊपरी हिस्से पर नारियल रखकर उस पर हरे रंग का कवर लगाकर परिवार के सदस्यों ने पूजा पाठ करके और पुजारी के द्वारा मंत्रोच्चारण के बीच गुलाब की पंखुड़ियां बरसाकर कार को विदाई दी। इस पूरे अंतिम संस्कार के काम में लगभग 5 लाख रुपए खर्च हुए। कार्यक्रम में स्थानीय संतों और धर्म गुरुओं की मौजूदगी में गांव के करीब 1500 लोगों को भोजन भी कराया गया। गुजरात के वडोदरा में कमाटी बाग जॉय ट्रेन कई महीनों के बाद फिर से शुरू कर दी गई है। वडोदरा के हरनी बोट कांड के बाद राजकोट अग्निकांड हुआ था, जिसके बाद गुजरात सरकार ने सभी गेम जोन, अम्यूजमेंट पार्क सब कुछ बंद कर दिया था, जिसके तहत कमाटी बाग की जॉय ट्रेन और अम्यूजमेंट पार्क को भी बंद कर दिया गया था। 5 महीनों के बाद आखिरकार कमाटी बाग में जॉय ट्रेन फिर से शुरू करने की अनुमति खोडल कॉरपोरेशन को दे दी गई है। इन दिनों दिवाली का वेकेशन चल रहा है और बड़ी संख्या में लोग गार्डन की सैर के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में कमाटी बाग में जॉय ट्रेन शुरू कर देने से बच्चों में उत्साह देखने को मिल रहा है। આપણે રાજકોટમાં જે જગ્યા જોન દુર્ઘટના બની હતી ત્યાર પછી અંદાજે 5 મહિના પછી નવી એસઓપી પ્રમાણે આપણી જે કમાટી બાગ ખાતેની જોઈ ટ્રેન છે એ ચાલુ કરવામાં આવી ગઈ છે અને જેનો સમય આપણે આજથી સવારે 8 થી રાતના 8 વાગ્યા સુધી રાખેલ છે। એ આપણે પબ્લિક માટે આપણે પહેલાડ્યો માટે ચાલુ નવી એસઓપી પ્રમાણે આપણે બધી કાઢી લીધી છે અને જે બધું ઇન્સ્પેક્શન કરાવેલ છે તો આપણે ફાયરના બોટલો મૂકેલા છે, જે નોટિસ બોર્ડ ઉપર સૂચના મારવાની ટીમ આવેલી છે, 10 ફર્સ્ટ એડ કીટ મૂકેલી છે, એથી આપણે આયોજન કરેલ છે। અને બેઠક વ્યવસ્થા જે હતી એ પ્રમાણે છે। આપણે જે ટ્રેનમાં સિટિંગ કેપેસિટી છે એ જ પ્રમાણે વેટિંગમાં આપણે સિટિંગ કેપેસિટી રાખેલી છે। એટલે આપણે નિયમ પ્રમાણે એવું રાખ્યું છે કે જેટલા જણ વેટિંગ એરિયામાં ટ્રેનમાં આવી શકે એટલા જણને જ આપણે ટિકિટ આપીએ છીએ। એ લોકો ટ્રેનમાં બેસી જાય ત્યાર પછી બીજી ટિકિટ આપણે ઇસ્યુ કરતા હોઈએ છીએ। गुजरात के भावनगर में हनी ट्रैप का मामला सामने आया है, जिसमें डॉक्टर को घर बुलाकर नशीला पेय पदार्थ पिलाने के बाद वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया गया। भावनगर के भरतनगर पुलिस थाने में एक डॉक्टर ने शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें डॉक्टर को घर बुलाकर नशीला पदार्थ पिलाने के बाद अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल की शिकायत की गई है। लंबे अरसे से यह डॉक्टर ब्लैकमेल करने वाली लड़की के संपर्क में था, जिसके बाद डॉक्टर को हनी ट्रैप में फंसाकर 5 लाख और कार की मांग करने वाली महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और कोर्ट में पेश कर 2 दिनों के रिमांड भी मंजूर कराए गए हैं। भरतनगर पोलीस स्टेशन विस्ताરમાં આવેલ ઓમ રેસિડેન્સી ગોવર્ધન નગર ના 5મા માળે નો આ બનાવ છે દેવાડા ગામનો, જેમાં આ કામના જે ફરિયાદી જે છે ફરિયાદી અને ભોગ બનનાર ડૉક્ટર છે, તેઓને સામાવાળા જે છે આરોપી સાથે અગાઉથી પરિચિત હતા અને દિવાળીના દિવસો દરમિયાન આ કામના આરોપીએ ફોન કરી અને ભોગ બનનારને તેઓના જે ફ્લેટ ઉપર બોલાવેલા। ત્યારબાદ ભોગ બનનારને સફેદ પ્રવાહી પીવડાવી અને અર્ધ બેભાન કરી દીધેલા। બાદમાં તેમને નગ્ન કરી અને તેના ફોટો અને વિડીયો શૂટ કરી અને તેના વાયરલ કરવાની ધમકી આપેલી। ત્યારબાદ તેની પાસે 5 લાખ રૂપિયા અને 4 વ્હીલ સ્વિફ્ટ ગાડી ની માંગણી કરી અને બળજબરીથી કઢાવી લેવાની જે ફરિયાદ જે છે તે ભરતનગર પોલીસ સ્ટેશનમાં દાખલ કરવામાં આવેલા છે। આ કામે પીઆઈ શ્રી તપાસ ચલાવી રહ્યા છે અને પુરાવા એકઠા કરી રહ્યા છે।